हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप you all will be fine and safe. Students, today I have come with the fifth poem of class 10th. This is the Ball poem and it has been composed by John Berryman. Students, in this poem, John Berryman, the poet, has tried to show the way of life. It means that he has tried, उन्होंने कोशिश किया है ये बताने का एक बच्चे के थ्रू कि कैसे खोना जीवन का एक अंग है। जीवन में सिर्फ पाना ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजें हम खोते भी हैं। बट अ चाइल्ड इज टोटली अनअवेयर एंड अननोन टू दिस फैक्ट, सो ही इज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए चाइल्ड। एंड आइए देखिए कि हाउ ही इज trying to give this kind of training to this child, as well as he has tried his best to give this lesson to all its readers. So this is the poem I am going to tell. 4 paragraphs it has. First paragraph is, what is the boy now who has lost his ball? There is a boy who has lost his ball. The ball for a child is always very loving, and especially particular that ball, that toy by which he plays, which he likes much, उसको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता. So the poet is taking the example of ball which has been lost by that boy. What is the boy now? वो देख रहा है खरा अब बच्चा कैसा है. Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है. What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Poet is telling that boy is going to do nothing. He is very sad. He is standing over there and he is recalling that how his ball has gone. It has gone merrily, happily, bouncingly. जब गेंद उछल के जाती है, कूदते हुए जाती है, जंप करते हुए जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो खुशी से जा रही है. For that, poet is telling that merrily and bouncingly it goes down the street and it goes in the water. But now child is sad and he is standing in a corner and he is recalling that ball which he has lost. So I hope first paragraph you have understood. Now it is second paragraph. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. बच्चा आप क्या करता है? अगर उस बच्चे के सामने आप जाएं और कह दें कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बॉल हैं, दूसरा बॉल लाके आपको दे देंगे. An ultimate shaking grief fixes the boy. बच्चा उससे खुश नहीं हो जाता. क्यों? क्योंकि an ultimate grief is there in his mind, particularly to that ball which he has lost. कहने का मतलब कि जीवन में बहुत सारी चीजें हम खोते हैं, हम सेम फिर पा नहीं सकते. The things later on which we will get, या तो उससे बेहतर होगी या वो उससे खराब होगी. But exact we can't get. So जो हम लोगों ने खोया है वो खोया ही रह जाता है. तो losing something is a part of life, and through this boy should learn losing something in life. As he stand rigid, but बच्चा क्या करता है? वो rigid हो जाता है, तन के खड़ा हो जाता है, trembling, staring down, घूरता रहता है. कहाँ पे? वहीं पे, उसी जगह पे, हार्बर वेयर द बॉल वेंट. फॉर हार्बर मीन्स हियर, हार्बर मीन्स तो बंदरगाह होता है, बट हार्बर मीन्स हियर दैट पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर दैट बॉल वेंट. बच्चा रिजिड है कि हमको वही चाहिए. घर में होता है, एक बच्चे का कुछ खो जाता है, उसको लाख आप दूसरा ला के दे दीजिए, उसको वही चाहिए जो खोया है. वो धीरे धीरे जाकर के जो है तब अपने को कंसोल कर पाता है. इन थर्ड पैराग्राफ पोएट इज टेलिंग, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take ball. Balls will be lost always, little boy. Poet is telling
very experienced and very deep thing. कहता है I would not intrude on him. I would not be a kind of interruption to that child. कहा बच्चे को जो है मैं उसके सीखने के प्रोसेस में रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता. Means he is giving a kind of message to each and all that no one should be a kind of interruption in the learning process of a child. Because if a child has lost something, let him weep, let him learn that losing something is a part of life, essential part of life. जीवन में सिर्फ हमको मिलता ही नहीं है, हम खोते भी हैं. So poet is telling that I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. कितने का बॉल होगा? Dime is a currency. 10 cents is equal to 1 dime. और कह रहा है कि बहुत कम पैसे का है, दूसरा बॉल तो आ सकता है बच्चे को, लेकिन नहीं. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस तरह से उस बच्चे के अंदर पहली जिम्मेदारी आती है, पहली समझ आती है. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, बच्चा शुरू से जो है जिद किया है, जो चाहा है वह मिला है, खोना नहीं सीखा है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही इज लर्निंग टू लूज समथिंग इन लाइफ. पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन में, बॉल के माध्यम से पोएट क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीजें जीवन में हमको खोनी है. ऐसा नहीं है कि बस बॉल ही है. तो बॉल क्या है? वो प्राइमरी स्टेज है जिससे बच्चे के अंदर सहन शक्ति, बियर करने की क्षमता आती है. वो सीखता है कि बॉल ही नहीं, आगे चल के बड़ी चीजें भी वो खोएगा और रह लेगा. नाउ द लास्ट पैराग्राफ. एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग. Well, behind his disparate eyes, the epistemology knows how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. Poet is telling that and no one buys का कोई भी दूसरा एग्जैक्ट उसी तरह का बॉल नहीं खरीद सकता. क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल. पैसा एक्सटर्नल, बाहरी सुख दे सकता है. But inner pleasure is only and only given to you by circumstances. And if they are against you, you can't be pleased. Money आपको, पैसा कभी आपको सुख नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकती. He is learning. कहा बच्चा जो है सीख रहा है. Well behind his disparate eyes, the epistemology. Epistemology means knowledge. It is a Greek word, epistemology, and it means knowledge. तो knowledge of loss. कहा कि कैसे हम जीवन में खोते हैं और उसके बाद कैसे हम स्टैंड करते हैं और जीवन जी लेते हैं, ये बच्चा इस गेंद के खोने के माध्यम से सीख रहा है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. कहा ये बात सबको जाननी है एक दिन, इसलिए बच्चे को सीख लेने दीजिए, इसको रोकिए मत. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल दैट प्लीज राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम इन योर ओन वर्ड्स. इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड इसी बहाने आप एक बार इस पोएम से होके गुजर जाएंगे. आई होप इट्स ए वेरी नॉलेजेबल पोएम. इट्स ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ब्लेस्ड. जय हिंद.